Very good evening, students. And today, this one is our fourth lecture, where we are going to give you an example how to solve a LPP and how to formulate a LPP before solving it. And in this regard, we have presented one question also in front of you. Now, before we are going to give you how to solve the assumptions, how to convert this all descriptive assumptions into the numerical form. This one is a humble request to each and everyone. Please like, subscribe and share my video, because that will be more and more beneficial for those who are economically weak or those who have some critical regions. That is why they can't go here and there for the learning purpose. Now, dear students, come over the video. Now, one question is written in front of you. Same thing which one I have already discussed in video number 3, the mathematical model of LPP and the formulation of LPP, where I have already passed you the information that one descriptive statement will be given to you, and it becomes more and more important for you. Those who are sitting on the R&D post, he should know how to convert the descriptive into the mathematical form. That one is more and more important, that he should know how to convert it. And I told you at that time also that two types of data will become, and qualitative and the quantitative. Quantitative data is there in a numerical form, so easily you can see the mathematical form can be developed. But for the qualitative, it becomes that you should know, the experts should know how to convert the property based, the quality based data into the numerical form. So I told you some parameters are there, some scales are there. कुछ स्किल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वही चीज़ कि आपके सामने एक डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहते हैं वो सेटअप एन LPP, क्योंकि इसके बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP आएगा. अभी हम मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP पढ़ रहे हैं, जहाँ पर एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे कहा है कि आप इसका एक LPP फॉर्मुलेट करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो आपसे कहेगा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में कन्वर्ट करिए. फिर आप जाएंगे क्वेश्चन पर, जहाँ पर आप पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड, तो वहाँ पर आपको LPP ही मिलेंगी सॉल्व करने के लिए. बट बिफोर वी आर गोइंग टू यूज अ सिंप्लेक्स मेथड, वी शुड नो व्हाट इज LPP एंड हाउ टू फॉर्मुलेट अ LPP. LPP क्या है, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है. मगर अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, अब ये देखिए. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. अ मैन्युफैक्चरर produces two types of models, M1 and M2. Each M1 model requires 4 hours of grinding and 2 hours of polishing, whereas each M2 model requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing. The manufacturer has 2 grinders and 3 polishers. Each grinder works for 40 hours a week and each polisher works for 60 hours a week. Profit on M1 model is ₹3 and profit on M2 model is ₹4. Whatever is produced in a week is sold in a market. How should the manufacturer allocate his production capacity to the two types of models so that he may make the maximum profit in a week? यहाँ पर वो कह रहा है आपके सामने कि एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह के मॉडल्स बनाता है, M1 और M2. तो देखो बच्चों, जैसे भी क्वेश्चन आपको दिया होता है और हम LPP को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला काम है व्हाट इज़ अ गिवन इन्फॉर्मेशन इन अ क्वेश्चन. तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्यूशन से पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया. तो मैं कहता हूँ गिवन, पहली चीज़ जो आपको दी गई थी कि एक मैन्युफैक्चरर ने 2 मॉडल्स बनाए हैं. तो मैं कहता हूँ एक M1 मॉडल है, एक M2 मॉडल है. M1 मॉडल को बनने में आपके 4 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, ये 2 टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं आपके M1 एंड M2 मॉडल को बनाने के लिए. जब M1 मॉडल बन रहा था तो इसको ग्राइंडिंग में 4 आवर्स लगते हैं और पॉलिशिंग में 2 आवर्स लगते हैं, जबकि ईच मॉडल M2 मॉडल को 2 आवर्स ऑफ ग्राइंडिंग्स लगता है एंड 5 आवर्स ऑफ
पॉलिशिंग लगती है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँ कि M1 M2 दो मॉडल्स हैं जो कि एक मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए। इनको बनाने में जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ हुआ वो ग्राइंडर और पॉलिशर है। कितना कंजप्शन किया जब M1 मॉडल बना और M2 मॉडल बना, ये मैंने आपके सामने इंडिकेट किया। उसने कहा है द मैन्युफैक्चरर 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर्स। इनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, हम कहते हैं इसको ग्राइंडर्स दिए गए हैं मैक्सिमम 2 और पॉलिशर्स हैं हमारे पास टोटल 3। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ईच ग्राइंडर वर्क्स फॉर 40 आवर्स इन अ वीक। एक वीक में एक ग्राइंडर को जो समय मिला है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो 40 आवर्स है। बेटा 40 आवर्स एक ग्राइंडर पर है, ग्राइंडर आपके पास मौजूद हैं 2। एंड ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक। एक वीक में जो पॉलिशर के लिए कैपेसिटी दी गई है दैट इज़ 60 आवर्स, जबकि पॉलिशर्स हैं हमारे पास 3। ये मैंने सिर्फ जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन उसी को शो कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन M1 मॉडल वो ₹3 है। इस M1 मॉडल पर जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो ₹3 है, और M2 मॉडल पर जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो ₹4 है। वॉट एवर इज प्रोड्यूस इन अ वीक इज सोल्ड इन अ मार्केट। जो कुछ भी बना वो मार्केट में बेच दिया गया। हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर एलोकेट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट मीन्स हाउ ही यूजेस ग्राइंडर एंड द पॉलिशर सो दैट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शुड बी कमिट आउट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो एक मैन्युफैक्चरर को अधिक से अधिक प्रॉफिट कैसे हो सकता है, वो इन प्रोडक्शन को बनाने में, इन मॉडल्स को बनाने में अपने ग्राइंडर और पॉलिशर को किस टाइप से सेटअप करें। जैसे मैंने पुराने वाले में बताया आपका LPP में कि 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को मिलकर इतने दिनों में काम करते हैं। तो वही मैंने कहा 1 ग्राइंडर या 4 ग्राइंडर और 2 पॉलिशर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में M1 मॉडल बनाते हैं जिस पर ₹3 का प्रॉफिट होता है। वही सेम सिचुएशन है जैसा अजम्पशंस दिया जाता है। तो मैंने कहा था जब भी हम LPP को सॉल्व करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। और वेरिएबल मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऐसा चीज़ जिससे कि हम अपनी दी हुई इंफॉर्मेशंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था X Y Z मान लिया, A B C मान लिया, P Q R S T मान लिया, और जो आपके वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर ग्राइंडर है, आपका ग्राइंडर जो काम कर रहा है 4 घंटे में क्या करेगा, 2 घंटे में कितना करेगा, 6 घंटे में कितना करेगा। इस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और वॉल्यूम लगातार चेंज होती चली जाएगी। एंड द सेम इज देयर विद द पॉलिशिंग। उसने आपके 2 घंटे पॉलिशिंग करने पर कोई M1 मॉडल बनाया है, हो सकता है पॉलिशिंग उसकी 4 घंटे हो तो 4 मॉडल बना दे। दैट मीन्स हिज कैपेसिटी इज गोइंग टू बी चेंज, दैट पोटेंशियल जो है उसका लगातार चेंज होता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो क्वेश्चन दी गई है तो LPP हम सेटअप करते हैं तो हमें वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है। मगर जो दिया गया था वो मैंने क्वेश्चन में आपको शो कर दिया। अब सोचने वाली बात जो है फॉर्मूलेशन ऑफ LPP, मैं बताने से पहले मैंने वेरिएबल का बताया, मगर जैसे मैं फॉर्मूलेशन पे आया था LPP बताने के बाद तो मैंने आपसे कहा था वॉट एवर द प्रॉब्लम और द क्वेरी इज गिवन टू यू, इफ़ the researcher or the R&D member, those who are sitting on this particular seat, he should have this kind of capacity that he can convert a descriptive problem into a numerical form। कि दी हुई किसी भी समस्या को, किसी भी क्वेरी को, चाहे वो क्वालिटेटिव फॉर्म में आती हो चाहे वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में आती है, क्वांटिटेटिव में आती तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मगर बाई चांस वो क्वालिटेटिव में है तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंज करने की क्षमता उसके अंदर होती है, तो उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LPP कह देते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP कह देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा और यूज़ करके दी हुई इन्फॉर्मेशन से इन्हीं के आधार पर मैं मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँगा इस डेस्क्रिप्टिव थ्योरी को। देखिए जो दिया था वो आपका ये रहा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP में मैंने आपके सामने बोला था, फॉर्मुलेशन बोला कि आप अपनी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हो, और फिर मैंने कहा था जब मैथमेटिकल मॉडल बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि हर किसी प्रॉब्लम को जब हम LPP में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे जिनके आधार पर हम किसी भी डेस्क्रिप्टिव दिए हुए न्यूमेरिकल फॉर्म को, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए किसी भी क्वेरी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें वेरिएबल मानता हूँ, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा, तो मैं कह देता हूँ लेट किया मैंने, सपोज किया कि M1 मॉडल था जो बन के तैयार हुआ,
तो M1 मॉडल पर होने वाला प्रॉफिट आपको 3 रुपये दिया गया था और एक वीक की बात की गई है, 40 आवर्स अ वीक, ठीक है ना। तो 40 आवर्स अ वीक मीन्स एक वीक में इस M1 मॉडल कितने बन के तैयार हो जाएंगी, इसकी संख्या इसमें नहीं है। मगर उसने एक चीज़ इंडिकेट की कि एक मैन्युफैक्चरर ने M1 और M2 दो मॉडल बनाए और उन्हीं मॉडल के आधार पर उन्होंने उसकी कैपेसिटी को भी इंडिकेट कर दिया कि एक पर 2 घंटे लगे थे पॉलिशिंग के और 5 घंटे लगे थे पॉलिशिंग के, ठीक है ना, ग्राइंडर के और पॉलिशिंग के, इस तरीके से उसने इंडिकेट कर दिया। उसने एक ही प्रोडक्ट पर अपने प्रॉफिट को इंडिकेट किया। मैं ये कह देता हूँ कि X1 आपका वो वेरिएबल है, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक, ठीक है ना। मैंने ये मान लिया X1 वेरिएबल को कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक, एक वीक के अंदर इस M1 मॉडल की इस ग्राइंडर और पॉलिशिंग की सहायता से आपके X1 मॉडल बनके तैयार हो जाते हैं। अगर ये M1 मॉडल X1 है तो मैंने एक दूसरा मॉडल और मान लिया और मैंने कहा X2 मॉडल वो है जो ये शो करता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट M2 इन अ वीक, ठीक है जी। जो पहली चीज़ हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपसे बोली थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पे हमें किसी न किसी वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे ABC लेते हो, चाहे PQRS लेते हो, चाहे XYZ लेते हो एंड वट एवर टू बी, कोई भी सिमुलेशन या सिंगल्स लेते हो। यहाँ पर मैंने मान लिया है कि हमारा सिंबल X1 है जो कि आपके M1 मॉडल को शो करता है उनके टोटल प्रोडक्शन को, X2 है वो आपके M2 मॉडल को शो करता है उनके टोटल प्रोडक्शन है ना वीक को, ठीक है जी। अब बिफोर माई सेल्फ इज गोइंग टू रब दिस पर्टिकुलर पोर्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे से आप इसको पॉज करके सेव कर लीजिएगा। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा मिटा रहा हूँ। देखिए जो दिया गया था वो हमारे पास पूरा इसमें हमने मौजूद कर रखा था कि इसमें प्रॉफिट हमारा 3 रुपये था और यहाँ पर आपके ग्राइंडर था, यहाँ पर आपकी पॉलिशिंग थी और इस पे आपका लगा था 4 आवर्स और इस पे लगे थे आपके 2 आवर्स और ये हमारे पास टोटल 2 थे, एक 40 आवर्स के लिए है, ये हमारे पास 3 थे और ये 60 के लिए थे। ये हमें दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैंने कहा यहाँ से सॉल्यूशन में मैं इसको मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं इसको लेता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और जब मैंने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ LPP बताया था उस समय मैंने आपको फर्स्ट चीज़ स्टार्ट की थी कि वेरिएबल्स को लेने के बाद हमारा पहला स्टेप जो निकल के आता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होता है। और किसी भी ह्यूमन बीइंग का व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल और अबाउट द कॉर्पोरेट हाउस, उसके 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सके और अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ कर सके। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट की जो बात की है दैट वन इज़ नॉट देयर, दैट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स, कि हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हो। वो पैसा भी हो सकता है, सोशल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि किसी एक इंडिविजुअल की या कॉर्पोरेट हाउस की एक यूनिक वैल्यू, एक गुडविल किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बन के तैयार हो जाती हो। तो यहाँ पर मैंने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो आपकी लास्ट लाइन जो दी गई थी, जो मैंने आपसे कहा है कि वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें दिया हाउ ही विल मेक अ मैक्सिमम प्रॉफिट एडिशन बाय डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल्स। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मैंने कहा मैक्सिमम जेड, और मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो इंडिकेशन है, जो सिंबल है वो जेड है। तो जेड लिया, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज की बात की गई है तो मैंने मैक्स जेड ले लिया। अब क्वेश्चन में देखिएगा M1 मॉडल पर, ये M2 मॉडल था, यहाँ पर M1 मॉडल था और ये रुपीस थे आपके 3। कि M1 मॉडल पर जो होने वाला प्रॉफिट है
एक M1 प्रोडक्ट पर होने वाला प्रॉफिट है आपका 3। अच्छा, पूरे प्रोडक्ट कितने बन के तैयार हुए हैं? X1। एक M1 मॉडल पर जो आपको प्रॉफिट था वो क्वेश्चन में दिया गया कि एक मॉडल पर होने वाला प्रॉफिट 3 रुपये है और टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? X1। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3x1। मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है 3x1। इसी तरीके से आपके एक M2 मॉडल पर किसी भी फर्म में एक मैन्युफैक्चरर द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया गया वो 4 रुपये है। टोटल प्रोडक्ट है आपके X2, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? तो ये आपका हो जाता है 4x2। मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन जो हमें डेवलप करना था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो हमने बना लिया, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने आपको बोला था वो मैंने बोला था सेट ऑफ लिमिटेशंस, कि कुछ ना कुछ ऐसी लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। मैंने कहा जब हमारे रिसोर्सेज हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वह एक प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी सेट ऑफ लिमिटेशंस या बाउंड्रीज या कॉन्स्ट्रेंट रहे होंगे, इंट्रेंसेस रहे होंगे, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को ये महसूस हुआ कि मुझे M1 मॉडल बनाना है या M2 मॉडल बनाना है जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पर वो सेट ऑफ लिमिटेशंस हैं जिनके आधार पर इनको आप इस तरीके से इन्वॉल्व या मैनेज करना चाहते हो कि एक ऐसा सेटअप बन के तैयार हो जाए कि आपका आने वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब सेटअप क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है और आप इसको कैसे अरेंज करोगे। पहले दी हुई लिमिटेशंस ये देखिएगा, M1 मॉडल पर लगने वाला ग्राइंडर है आपका 4 आवर्स और M2 मॉडल पर लगने वाला ग्राइंडर है 2 आवर्स। अगर मैं सिर्फ ग्राइंडर की बात करूं कि M1 और M2 मॉडल को जब बनाया जाता है तो उनके ऊपर आपके ग्राइंडर द्वारा जो भी आवर्स स्पेंड किए जाते हैं वो कितने हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है कि आपको इतने घंटे के अंदर चाहे M1 मॉडल बना लो चाहे M2 मॉडल बना लो, 1 के आपका इतने घंटे में होना है। तो आप कहते हैं लिमिटेशन है आपकी कि 4x1 4 आवर्स यूज्ड ऑन द M1 मॉडल एंड M1 मॉडल इंडिकेट्स फॉर द X1। क्योंकि एक मॉडल पर 4 घंटे थे, मैं कहता हूँ ये टोटल वीक का है, ठीक है ना। तो 4 वीक का 4 आवर्स का उन सभी में आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया कि जो भी आपकी यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रही थी, और M1 मॉडल की टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप X1। एक पर लगने वाला 4 तो X1 पर लगने वाला 4x1, मैं लिखा प्लस एक M2 मॉडल पर लगने वाला ग्राइंडर का समय है 2 आवर्स और टोटल आपके M2 मॉडल बन के तैयार हुए हैं X2, तो ये आपका होता है 2x2। आपके पास जो ग्राइंडर्स थे वो 2 हैं, जबकि एक ग्राइंडर को जो कैपेसिटी दी गई है वो 40 है, तो आपके 2 ग्राइंडर्स पर एक कैपेसिटी बनती है 80। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था जब भी हम LPP फॉर्म करते हैं तो छोटी क्लासेस के अंदर आपको LHS और RHS दिया जाता है, तो हम ईजिली उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मगर मैंने ये भी कहा जनरली आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या इस थ्रस्ट होल्ड कंपटीशन वाले वर्ल्ड में जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। हमेशा एक्सपेक्टेशंस लगेंगी कि अगर 4 ग्राइंडर और 2 ग्राइंडर्स 4 ग्राइंडर्स और 2 पॉलिशर्स को अगर यूज़ किया जाता है तो शायद आप 50 का प्रोडक्शन करते हो, और अगर यहाँ पर हम 6 ग्राइंडर और 5 पॉलिशर कर दें तो शायद एक कैपेसिटी आपकी 4 हो जाए, ठीक है ना। हम क्या लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स को बढ़ा दिया, जॉब्स की संख्या बढ़ा दी, मशीनरी बढ़ा दी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, या इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, इससे आपकी कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी पोटेंशियलिटी निकल के आ जाएगी। हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, तो हमेशा इक्वल की कंडीशन निकल के नहीं आती है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, उसने कहा द ग्राइंडर इज अवेलेबल इन अ वीक फॉर 40 आवर्स एंड इवन 2 ग्राइंडर्स आर देयर इन योर हैंड, दैट मीन्स टोटल कैपेसिटी इज 80। तो आप M1 मॉडल पर लगाने वाली कैपेसिटी कितनी है 4x1, M2 मॉडल पर लगाने वाली कैपेसिटी कितनी है 2x2, मगर आपके पास जो ग्राइंडर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, तो आप कहते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल है तो आप कहते हैं इक्वल टू 80। अच्छा, 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, बनाते बनाते आपने सोचा जो 2-4 घंटे के लिए ग्राइंडर को छोड़ गया 80 घंटे तो हम 84 घंटे चला लेते हैं, 82 घंटे चला लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसने कहा क्वेश्चन में कि आपका टाइम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन का अभी और आपके पास टोटल टाइम है 80 आवर्स का। दैट मीन्स आपके पास कंडीशन दी है कि अधिक से अधिक आपके पास टाइम है 80 आवर्स और कम से कम टाइम भी आपके पास कितना है 80 आवर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़रूरत के अनुसार इस 80 को 85 बना लें। एक मैन्युफैक्चरर के पास जो एलोकेशन किया गया है वो इक्वल और लेस देन इक्वल टू 80 है, 80 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। जो ये मेन कंडीशन थी। और ये सिंबल जो लेस देन इक्वल टू का लगाया इसे हम कहते हैं इनइक्वलिटी। इसको कहते हैं हम इनइक्वलिटी कि आपके पास अधिक से अधिक ग्राइंडर्स की कैपेसिटी जो मौजूद है वो 80 है या 80 के बराबर है, 80 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे पॉलिशर पर। यहाँ पे देखिएगा M1 मॉडल पर जो आर्स लगते हैं पॉलिशर के वो 2 हैं, तो टोटल X1 मॉडल बने एक वीक में, तो उस पर लगने वाले आपके पॉलिशिंग के आर्स हो जाएंगे 2x1। M2 मॉडल पर जो आपकी पॉलिशिंग के आर्स लगे हैं that one is 5 and that one is there only for one product. Now we are talking about the whole product, that one is x2। तो टोटल कैपेसिटी आपकी बनती है 5x2। और हाँ, यहाँ पर भी आपके पास जो पॉलिशिंग अवेलेबल थी वो थी 60 आवर्स इन अ वीक एंड टोटल नंबर ऑफ पॉलिशर्स आर 3। तो टोटल कैपेसिटी आपकी 180, मैं यहाँ लिख देता हूँ 180। अब M1 और M2 मॉडल के लिए आपको जो पॉलिशिंग अवेलेबल रहेगी वो अधिक से अधिक 180 आवर्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 180 आवर्स से 185 आवर्स तक ले जाएं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इतना हो सकता है कि अधिक से अधिक आपका 180 या 180 के बराबर। आपको लगता है कि आप 180 घंटे यूज करना नहीं चाहते, ना दें। आप एग्जामिनेशन में गए, आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है, आपको लगता है कि आपने 2 घंटे में कर लिया, वो आपकी कैपेसिटी है। मगर अधिक से अधिक या तो आप 3 घंटे या 3 घंटे से कम। तो यहाँ पर अधिक से अधिक पॉलिशिंग का टाइम जो आपको दिया गया है वो 180 है। 180 या 180 से कम, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो दिस टाइप ऑफ लिमिटेशंस, सेट ऑफ लिमिटेशंस के ये है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो दैट मीन्स अभी जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो सेटअप है, जो कंडीशंस बनाई गई हैं वो ये हैं। अब आपको, आपके रिसर्चर को, आपके एक्सपर्ट को, इवन व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको इनके अंदर ऐसी कंडीशन सेट करनी है कि लेस देन, मोर देन, ये इक्वलिटी की फॉर्म कुछ भी बनती हो, मगर x1 और x2, दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल ऑफ x1, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडल ऑफ x2, कि आप इनका ऐसा सेटअप बनाइए कि आपका निकलने वाला जो प्रॉफिट है वो अधिक से अधिक निकल के आ जाए। चाहे 4x1 का बने या 5x1 का बने या 2x1 का बने या आपका 5x1 या 3x2 या 7x1 या 9x2, कुछ भी कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकले, जबकि आपको दी हुई कंडीशन मैक्सिमम ग्राइंडर 80 आवर्स के लिए रहेगा, मैक्सिमम पॉलिशिंग आपकी 180 आवर्स के लिए रहेगी। ये सेकंड था। और थर्ड था इसके अंदर जो मैंने आपको डिफाइन किया था, डिसीजन वेरिएबल। ध्यान करिएगा, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी दोनों टॉपिक्स कराए थे। और मैंने फॉर्मुलेशन बोला था कि हम एक बार किसी भी डेस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और मैथमेटिकल मॉडल में आपसे मैंने कहा था कि किसी भी एलपीपी को डेवलप करने से पहले हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है, वो हमसे प्रॉफिट की बात कर रहा है, लॉस की बात कर रहा है। दूसरा, वो कंडीशंस क्या थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई और हमें सोचना पड़ा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, ठीक है ना। और तीसरा था आपका डिसीजन वेरिएबल। तीसरा था आपका डिसीजन वेरिएबल। देखिए, कोई भी फर्म अगर M1 मॉडल बनाती है और मैं कहता हूँ एक वीक के अंदर उसके टोटल प्रोडक्ट बनते हैं X1, तो क्या एक मॉडल भी बना होगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 0 होगी, 0 से ज़्यादा होगी। अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट भी बना के तैयार कर दिया, क्योंकि एक प्रोडक्ट पर उसने प्रॉफिट शो किया है कि M1 मॉडल पर होने वाला प्रॉफिट ₹3 है, M2 मॉडल पर होने वाला प्रॉफिट आपका ₹4 है। तो दैट मीन्स अगर उसका एक भी प्रोडक्शन हुआ है, एक भी प्रोडक्ट बन के मार्केट में तैयार हुआ है, वो निश्चित तौर पे 0 से तो ज़्यादा ही रहा है। और यहाँ पर तो टोटल प्रोडक्ट बने हैं उसके X1, तो मैं कह सकता हूँ कि उसके X1 जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 से तो ज़्यादा ही रही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना,
कि आपको किसी प्रोडक्शन पर लगा के आपने किसी मशीनरी को एक प्रोडक्शन पर लगा दिया कि आपको कोई लेबर के तौर पर काम करने के लिए ले गया, आप उसका काम जरा भी ना करो, जीरो कर दो, तो आपको रखेगा कौन? अगर कोई मशीनरी काम कर रही है और उसका प्रोडक्शन जीरो निकलता हो, आप मशीनरी को लगाओगे क्यों? दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन जो होगा वो जीरो से ज़्यादा ही होगा। इक्वल टू का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। ऐसे दूसरा है, इसकी कैपेसिटी हमेशा जीरो से ज़्यादा ही होगी। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी एफिशिएंसी, कोई भी पोटेंशियलिटी, कोई भी कैपेबिलिटी, चाहे हम मशीन की बात करें, चाहे हम जॉब्स की बात करें, चाहे इंडिविजुअल की बात करें, वो कभी भी आपके जीरो नहीं हो सकती, जीरो से नीचे नहीं हो सकती। हम इतना ज़रूर मान सकते हैं किसी की पोटेंशियल जीरो हो, इतना हम मान सकते हैं। कोई मशीनरी अगर कुछ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, और हो सकता है कि पूरा प्रोडक्शन ही डिफेक्टिव चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी कैपेसिटी आप जीरो हो सकती है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ बनाया जूता बन गया हाथी, ऐसा तो नहीं बन सकता, ये तो संभव नहीं है। अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग को लगाया पढ़ाने के लिए और वो वहाँ जाकर आप एक खुदाई करने लग जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दैट मीन्स x1 x2 जो कि वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू हमेशा ही जीरो से ज़्यादा रहेगी। तो ये 3 पैरामीटर्स थे जिनके आधार पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आपकी फॉर्मुलेशन एंड द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी को डिफाइन किया था। और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन हमेशा ही आपको डेस्क्रिप्टिव मिलेगा, और ये आपके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसे एलपीपी में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो वो कहलाता है फॉर्मुलेशन। अगर आप 3 स्टेप्स के अंदर उन कंडीशंस को भी डिफाइन कर देते हैं तो ये मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी कहलाता है। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया, अब जो कंडीशंस थी उनको भी हम ऐसे लिख लेते हैं कि आपके पास थे इक्विपमेंट, जैसा दिया था वैसा ही बनाया था। एक था आपके पास प्रोसेसिंग टाइम, और एक था आपके पास क्या था, आपको ग्राइंडर्स दिए गए थे प्रोसेसिंग और अवेलेबिलिटी रिसोर्सेस, ये था आपके पास। इसको मैं ज़रा टेबल फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो गिवन में लिखा था उसको मैं इसमें फॉर्म में अरेंज कर लेता हूँ। और जो प्रोसेसिंग टाइम है मैं इसे कर लेता हूँ कि M1 मशीन है और ये आपकी M2 मशीन है। टाइम आपको आवर्स में दिया गया था, टाइम आपको आवर्स में दिया गया था। यहाँ पर आपका ग्राइंडर है और यहाँ पर आपकी पॉलिशिंग है। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे ही M1 मॉडल पर आपके ग्राइंडर को आपने शो किया है कि 4 घंटे लगते हैं। M2 मॉडल पर आपके ग्राइंडर को 2 घंटे लगते हैं। आपने स्टेटमेंट में शो किया है, थ्योरी में दिया गया था। फिर से आते हैं, ये पॉलिशिंग वाला एस्पेक्ट है। देखिए ग्राइंडर था 80 का, ये ग्राइंडर था, ये आपकी पॉलिशिंग थी। क्वेश्चन में जैसा दिया था वैसे ही मैंने बनाया स्टेटमेंट को। यहाँ पे देखिए M2 मॉडल पर आपकी पॉलिशिंग को लगने वाला टाइम था 2 घंटे और M2 मॉडल पर पॉलिशिंग को लगने वाला टाइम था आपका 5 आवर्स। और आपका ग्राइंडर एक फैक्ट्री के अंदर जो मौजूद है वो अधिक से अधिक, आपके 2 ग्राइंडर थे, एक ग्राइंडर 40 के लिए था तो वो 80 आवर्स थे आपके पास टोटल। यहाँ पर भी जो पॉलिशिंग है आपके पास 3 है और आपको वीक में दिए गए हैं सिर्फ 60 आवर्स, तो टोटल पॉलिशिंग होती है आपकी 180 आवर्स के लिए। जैसा क्वेश्चन में लिखा था, जो मैंने आपको गिवन कहा था कि जो दिया होता है हम पहले उसे लिख लेते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। पहले मैंने उसको शॉर्ट में लिखा, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है मैंने गिवन में लिख लिया, उसके आधार पर मैंने तीनों स्टेप्स को डिफाइन कर दिया और लास्ट में उस दी हुई इन्फॉर्मेशंस को जिसके आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को सेटअप किया है मैंने एक टेबल में शो कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड इन व्हाट वे यू कैन कन्वर्ट द descriptive query or the problem into the mathematical form, and by the help of the variable, when you are going to convert the problem into the mathematical structure, you will follow 3 main important steps for the LPP: objective function, that may be profitization or may be a minimization of loss. Second one, a set of limitations, that is why this particular problem has been arised. So what type of setup you have to develop so the maximum profit should be coming out or the minimization should become a little win. And the third one, the decision variables, that means when we are talking about the machinery, when we are talking about the individual houses, they definitely their value should be more than equal to 0. कोई भी query हो, कोई भी दिक्कत हो, then please give me your message in the chat box, और
आगे कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप पर या मेरे कॉल पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।